weeks have seen two top-level diplomatic visits from polar opposites, France and Russia. Apart from looking at political clout, this is also an opportunity for Prime Minister Sheikh Hasina's government to bolster their power and prominence in the global political network. আসসালামু আলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও प्ले করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर बैरून ममालिक की दिलचस्पी क्यों बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तानी मीडिया आज बात कर रहा है फ्रॉम रशिया टू फ्रांस, ग्रोइंग ग्लोबल इंटरेस्ट इन बांग्लादेश के ग्लोबल दुनिया भर का जो इंटरेस्ट है वो बांग्लादेश की तरफ क्यों बढ़ता जा रहा है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। तो वसीम भाई, आज देखने जा रहे हैं कि दुनिया क्यों बांग्लादेश के पीछे है और दुनिया के बड़े बड़े सरबराहान, जिसमें आज रूस की बात करें, जिसमें आज फ्रांस की बात करें, तो इनके सदर जो हैं वो बांग्लादेश के विजिट कर रहे हैं और बांग्लादेश आ रहे हैं। चाइना की दिलचस्पी बांग्लादेश के ऊपर है, अमेरिका की दिलचस्पी बांग्लादेश के ऊपर है, फ्रांस रूस की दिलचस्पी बांग्लादेश के ऊपर है। तो दुनिया के बड़े ग्लोबल ममालिक जो हैं वो बांग्लादेश के ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 go। Last few weeks have seen two top-level diplomatic visits from polar opposites, France and Russia. This comes at a time where diplomatic focus on the country has been higher than never before. Apart from looking at political clout, this is also an opportunity for Prime Minister Sheikh Hasina's government to bolster their power and prominence in the global political network. Here's more. The first French president to visit Dhaka in 33 years. Emmanuel Macron was here as part of a strategy to woo Bangladesh at a time when superpowers Russia and China and the United States are jostling for influence. Hasina inked a deal with Macron for purchase of 10 Airbus aircraft worth $3.2 billion. A letter of intent was exchanged for an Earth observation satellite system. Nous avons une volonté commune. We have a common desire to safeguard the independence of our countries, to not give in to any external pressure, and, despite all current conflicts, to basically safeguard our freedom of sovereignty. As you know, I stand up for this third way in the Indo-Pacific region, based on the respect of sovereignty and the strategic autonomy of our partners. Et l'autonomie stratégique de nos partenaires. To ensure the geopolitical stability in the Pacific region, leaderships in both Bangladesh and France will play responsible roles. And this is just one end of it. Earlier in the month, Sergei Lavrov was here, the first ever visit by a Russian foreign minister. Lavrov assured the Rupur nuclear power plant project would be completed as per schedule, besides a push to enhance imports from Bangladesh and increase supply of fuel, food and fertilizer, here countering the West's overtures topped agendas. It doesn't mean that these attempts will stop. On the contrary, I think they will intensify and we need to be ready for that. We will work with our partners in the region in order to prevent the diktat of the countries that solely wants to think about their own interests and who want to tell others what they can and cannot do. US Secretary of State Antony Blinken had come calling in May. He had spoken of a new US visa policy and ensured fairness of the electoral process in Bangladesh in polls early next year. Though not made part of the grouping, Bangladesh made an impact at the BRICS summit in South Africa, and it was the only other South Asian nation invited by New Delhi to the G20 summit. Multiple factors are involved in what many see as Bangladesh's rising clout, extending from economic to geostrategic. So we see while Macron was in Dhaka, Biden was in Hanoi, and then Lavrov transiting through Dhaka, and then Chinese President Xi Jinping and our Prime Minister having a bilateral meeting in Johannesburg during the BRICS summit. So all this shows that Bangladesh can be trusted as a reliable
and a responsible player. And so let us, engage Bangladesh and listen what Bangladesh has to say. So I think our Prime Minister has managed our foreign policy very well. And that is why we are being sought more than any other South Asian country. I mean, of course, India is a different case altogether. But if you look at the smaller South Asian countries, I think we really are now immensely visible in the geopolitics and in a multipolar Asia and a multipolar world. Born out of East Pakistan in 1971, Bangladesh is one of the world's youngest nations. From once being called a basket case, its economic turnaround seemed an almost miraculous growth story. And now, in an increasingly divided world, Bangladesh emerges as a geostrategic identity. तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो। और आज के टाइम पे देखें तो फॉरेन कंट्रीज का जो इंटरेस्ट है वो बांग्लादेश के ऊपर बढ़ता जा रहा है। चाहे वहाँ पर चाइना हो, चाहे वहाँ पर अमेरिका हो, चाहे वहाँ पर रूस हो या फिर फ्रांस। तो आज देखने को मिल रहा है। इसकी वजह क्या है? क्यों मतलब वो चाइना और फ्रांस और जो रूस है वो बांग्लादेश के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? यार कोई भी मुल्क है ना, वो चाहता है कि उसके ताल्लुकात ज़्यादा हों, उसके ताल्लुकात उन ममालिक से हो जहाँ से वो फ़ायदा उठा सकता हो। अब देखें तो चाइना की भारी इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश के अंदर पद्मा ब्रिज बनाया गया चाइना के साथ मिलके। बांग्लादेश के अंदर ढाका हाईवे बनाए जा रहे हैं, ढाका सबवे बनाए जा रहे हैं और बांग्लादेश के अंदर एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर चाइना का भी हाथ है और चाइना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और साथ ही साथ वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चाइना के पास है। और इसके साथ ही देखें तो अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका चाहता है कि साउथ एशिया के अंदर वो अपनी ताकत को बढ़ाए और जो इंडो पैसिफिक रीजन है तो यहाँ पर वो अपनी ताकत को बढ़ाए और चाइना को जो है वो कंट्रोल करे। साथ ही साथ फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस भी यही मकसद लेके निकला है कि दुनिया के बड़े ताकतवर ममालिक हर किसी के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना रहे हैं और फ्रांस को भी बनाने चाहिए। यही वजह कि आज फ्रांस भी ताकतवर बनने के लिए आज वहाँ पर बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए बढ़ रहा है। और रूस की बात की जाए तो रूस के भी काफ़ी प्रोजेक्ट बांग्लादेश में चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो रूपपुर पावर प्लांट है, जिसको अब ये कहा जा रहा है कि पूरी मुद्दत में कंप्लीट कर लिया जाएगा, जो बांग्लादेश के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा एक प्लांट बन रहा है। तो नहीं, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो मुल्क हैं जो आपने बताया, रूस है, चाइना है या फ्रांस है, ये तो पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो इनको इस चीज की क्या जरूरत है कि वो बाकी कंट्रीज को छोड़ के सिर्फ बांग्लादेश के अंदर आकर अपना ये तमाम ममालिक के साथ हैं, ये सिर्फ बांग्लादेश के साथ नहीं। अब देखें चाइना की भारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के साथ है, सी पैक बन रहा है। तो ये जितने भी ममालिक हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बना रहे हैं। ये सिर्फ आपको नजर आ रहा होगा कि सिर्फ बांग्लादेश के साथ है, ये सिर्फ बांग्लादेश के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ। तो ये ममालिक जो हैं ये अपने फ़ायदे के लिए तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना रहे हैं और ये चाहते हैं कि नज़दीकियाँ हमारे साथ ज़्यादा हों। तो हम देखें अमूमन हमें अगर कहीं से फ़ायदा होगा ना तो हम लोग वहाँ पर पैसा भी लगाएंगे, हम लोग वहाँ पर जो काम है वो भी करवाएंगे और अपने फ़ायदे वहाँ से ज़रूर निकालेंगे। तो आज यही वजह है कि तमाम ममालिक अपने जो रिश्ते हैं वो बेहतर बना रहे हैं, अपने ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं कि आने वाले टाइम से इनसे अपने फ़ायदे उठा सकें। तो इन मुल्कों की भागदौड़ के अंदर तो फ़ायदा तो फिर छोटे मुल्कों को हो रहा है ना, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये दूसरे, क्योंकि उनके अंदर आके ये लोग इन्वेस्टमेंट। अच्छा मुझे बताओ कि जब आप कोई दुकान खोलते हो, क्या दुकान खाली खोल के बैठ जाओगे तो गाहक आ जाएगा? नहीं, सामान रखना पड़ेगा। जब आप सामान रखोगे तो वो बिकेगा तो आपको प्रॉफिट आएगी, बिल्कुल आएगी। तो यही वजह है कि चाइना, रूस, फ्रांस और अमेरिका किसी भी गरीब मुल्क के ऊपर या तरक्की याफ्ता मुल्क के ऊपर या बड़े मुल्क के ऊपर या छोटे मुल्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाते हैं, जैसे रोड बना दिया, हाईवे बना दिया, एयरपोर्ट बना दिया, कोई ब्रिज बना दिया जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल होता है, तो उसके बाद वहाँ से टैक्स कलेक्ट करते हैं। वो टैक्स का पैसा किधर जाता है? इन ममालिक को हिस्से जाते हैं, इन ममालिक को फ़ायदे होते हैं। हमारे मुल्क में तरक्की तो ज़रूर आ रही है, हमारे मुल्क से पैसा भी तो बना रहे हैं। बिल्कुल, जैसे आप दुकान खोलते हो, सामान डालते हो तो उसके बाद ही प्रॉफिट मिलता है ना।
तो इन लोगों ने पहले ताल्लुकात बनाए, फिर इन्वेस्टमेंट की, रोड बनाए, और वहां से पैसा जो जनरेट होता है वो इस मुल्क के साथ साथ उसको भी जाता है जो वहां पर इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये अभी तो मेरे ख्याल से अभी जो फ्रांस है, जैसे फ्रांस का बहुत ज्यादा रुझान इस तरफ बांग्लादेश की तरफ हो गया है। आप देखें कि 33 ईयर के बाद फ्रांस के सदर का ये पहला दौरा है, विजिट है, तो आहर कोई मुकासद लेकर ही आए हैं ना। कई मुकासद है जो अपने पूरे करेंगे। ऐसे होंगे जैसे आते सार ही उन्होंने 10 एयरक्राफ्ट, एयरबस जो है वो उनको दे दिए, उसके साथ ही एक भारी रकम लोन की बांग्लादेश को प्रोवाइड करने के। तो यही चीजें हैं, तमाम मुमालिक अपने मफादात को भी सामने रखते हैं और साथ ही साथ अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।